All So, right. hello and welcome again to our new episode. And on today's podcast, आज हम बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे which is or which will be introduced by Mr. Khatra. So, Mr. Khatra, please go ahead and tell our audience. वेलकम एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है, इट इज़ अबाउट द ऑनगोइंग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स इन इंडिया। ठीक है। जो आज का भारतवर्ष है, एज वी नो इट, Yeah. वी आर गोइंग टू लर्न about multiple separatist movements, and just a disclaimer in the beginning, हम कोई अपनी किसी को अच्छा बुरा नहीं जान कह रहे इसमें। हम द होल पर्पस ऑफ दिस एपिसोड टुडे, हम इसको लर्न करना चाहते हैं। जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट चल रही हैं इंडिया में, कहाँ कहाँ चल रही हैं, एंड व्हाट आर दे अबाउट, प्रीटी मच राइट। फॉर आवर dumb as brains, we want to tickle our brains and get some more knowledge about the ongoing separatist movements. So let's hop on this right away. Yes, without any delays, let's get to it. Okay, Mr. Hirabai. So, we are going to learn a little bit about. Let's start with Northeast first, right? I think it's Northeast, okay. very cool and interesting and something which is super slept on by Yeah, people, right? yes. बहुत ही underrated region है, और इतना हाँ. सुंदर और इतना खास region है इंडिया का, but I don't like when we don't know much about it. So I हमेशा की तरह we're gonna use our friend चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनाई, और जो भी हमारी हेल्प करेंगे इसमें, Yes, we're going to use our friends from all these internet dimensions. So yes. I want to learn. Let's ask chat gpt. uh, I want to learn in detail about the separatist movements in Manipur first. ठीक है? हाँ, So let's while you're see doing it, what it जैसे says. हमारे को जब तक चैट जीपीटी हमें इसका आंसर देता है, लेकिन इन जनरल टर्म्स विदाउट इवन यू नोइंग द फैक्ट्स ऑफ द Yeah. टॉपिक, you can still see that there is a huge disconnect. Like there is a sensational or generational, I mean, disconnect about the separatist movements or whatever is happening in northeast. Is like the people of other parts of the country are not kind of concerned about it. That's a kind of sentiment I have seen in majority, like talk about the news channels, talk about the media. I feel like nahi baat karte itna zyada. So there Yes. has been a disconnect. I can point that out without even looking on chat gpt for sure कि एक disconnect तो Exactly. जरूर है. However, coming back, उसके बाद हम बात करते हैं, अब start करते हैं, and then we will dive deep into this later on as well कि ये disconnect क्यों है. G. Okay. So Manipur's ethnic separatist movements, इसमें है Kuki, Meitei divide and recent unrest. Okay. There are 16 districts in Manipur, but the state is commonly thought of as divided into valley and hill districts. Okay. So अब थोड़ा इसका, let's go into the historical roots first. ठीक है? Before joining India, Manipur was a princely state. In 1949, a merger agreement was signed incorporating Manipur into India. The merger has remained a source of grievance for many in Manipur who viewed it as forced or insufficiently consulted. कि मतलब Okay. उनको उनसे पूछा नहीं गया या उनको चॉइस नहीं दी गई। आगे जो चैट जीपीटी कह रहा है, द रीजन्स ज्योग्राफी, हिली एरियाज अब्यूटिंग म्यांमार, uh, multiple ethnic tribal groups, which is the Métis people, Meitei, Métis, not the Canadian Métis, Yeah. Kuki people, Naga people, Imphal and surrounding hill districts all contribute to the contestation over land, resources, identity, and autonomy.
आगे हमें ये कह रहा है, several militant insurgent groups operate in Manipur, each with its own agenda. Even though the agendas overlap with each other, some of the major groups are मेटी वैली के जो ग्रुप्स हैं उनके नाम हैं यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट, यूएनएलएफ। ये इसको फाउंड किया गया था जी 1964 में, with the aim of establishing an independent socialist मणिपुर। ठीक है, फुल हम्म सॉवरेंटी जिसमें इनको चाहिए। पीपल्स रेवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कैंगले पैक, I'm sorry if I'm mispronouncing any of these names. People's Revolutionary Party of Kengle Pak, pre-PAK इसका abbreviation है, formed in 1977, also seeks an independent Manipur, emphasizing Metis identity and historical sovereignty. नंबर थर्ड जो है मेटी वैली का ग्रुप, उसका नाम है कैंगले यावोल काना लुप, इसका एब्रीविएशन है KYKL। ये है स्प्लिंटर ऑफ अदर ग्रुप्स, मतलब बाकी जो ऊपर वाले दो हैं उनके लोग टूट टूट के इन्होंने बनाया। इट हम्म वाज फॉर्म्ड इन 1994, also Métis based, pushing for sovereignty independence। तो ये अकॉर्डिंग टू चैट जीपीटी, दीज आर द मेटी वैली ग्रुप्स इन मणिपुर। और ये सिर्फ एक अभी ग्रुप के जो सेपरेटिस्ट या मिलिटेंट्स हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। Then we go next to the Kuki people. Kuki or Kuki-Zo और Naga people, that's what they are also called. कुकी पीपल के अंदर जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं उनमें पहला है कुकी नेशनल फ्रंट, KNF। हम्म Among ठीक। the Kuki tribe militant organizations, their demand has ranged from a distinct Kuki land state within India to greater autonomy। तो मतलब कि ये इंडिया के अंदर कुकी लैंड बनाना चाहते हैं। आई हम्म एम गेसिंग मणिपुर को तोड़ के। इफ देर इज एनी व्यूअर्स फ्रॉम देयर, प्लीज कमेंट एंड लेट अस नो सम थिंग्स वी हैव मिस्ड। Multiple other smaller groups from Kuki-Zo Chin communities who have cross-border links with Myanmar, uh, and they can draw on training, weapons, terrain access from Myanmar. अच्छा, तो मतलब Myanmar is also supporting them. I wonder who else is supporting them from that side. We'll go into it a little bit more. अच्छा, next point अब जो है हमारा हम्म वो है कॉजेज या फिर ड्राइवर्स ऑफ सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीक है, तो ये जो सो हम क्या सेपरेटिस्ट इसका मूवमेंट रीजन है? जो इसकी हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ अभी हम बात कर रहे हैं करंट जो मणिपुर में जो अभी डिस्टरबेंस चल रही है उसकी बात कर रहे हैं ना स्पेसिफिकली। जी और आई जी फील जी। लाइक उसी के बारे में हमें अपना जो पॉडकास्ट है आज का हमारा उसी पे ही है, टू अंडरस्टैंड इट कि आज ये हो यस क्यों रहा है और क्या रीजंस हैं इसके पीछे, और ट्राई टू और हम उसका रूट कॉज समझने की कोशिश कर रहे हैं विद सम हिस्टोरिकल एविडेंस। तभी हम वहाँ के जो इंडिजिनस जो ग्रुप्स हैं उनकी भी बात की आपने पहले, जो कि आपने भी बड़े अच्छे जी से एक्सप्लेन किया। एंड देन वहीं से ही हमारा आज का ये आगे बात बढ़ने वाली है, बॉर्डर भी हम चेक करने वाले हैं कौन सी कंट्री कहाँ कहाँ से अ, वो करती है शेयर, और ये कौन इसको इनकरेज करता है। तो यस, आप आगे बढ़ें और बताएं थोड़ा और इसके बारे में। सो ब्रो, नेक्स्ट थिंग इज द ड्राइवर्स ऑफ द सेपरेटिस्ट मूवमेंट ओके इन मणिपुर। ठीक है, कॉजेज एंड ओके ड्राइवर्स। तो ओके। आइडेंटिटी और हिस्टोरिकल सॉवरेंटी में ये लोग कह रहे हैं, हाँ। चैट जीपीटी कह रहा है कि आइडिया दैट मणिपुर sometimes which is also referred to as Kangli Pak, ओके लोकल्स इसको बोलते हैं कैंगली पैक, जो हम मणिपुर ओके। जिसको बोलते हैं। इट हाँ। हैड अ डिस्टिंक्ट प्री कॉलोनियल आइडेंटिटी, ओके। और सब्सिक्वेंट और इनकॉर्पोरेशन इनटू इंडिया जो है हाँ। इनके लिए पार्शल हुआ, इन ग्रुप्स के लिए। राइट, ओके इट वाज वेरी पार्शल एंड इट वाज डिसमिसिव ऑफ देयर लोकल विल। ओके। एथनिक कम्युनिटीज जैसे कि मेटी कुकी, दे फियर कि उनकी लॉस ऑफ आइडेंटिटी हो रही है, लैंड ओके थ्रू कल्चर है, डेमोग्राफिक चेंजेस हो रही हैं और स्टेट पॉलिसीज इन चीज़ों को फ्यूल कर रही हैं।
अच्छा, सोशियो ठीक है। इकोनॉमिक सेंस में ये लोग कह रहे हैं कि relative deprivation in the hills चल रहा है, ट्राइबल कुकी नागा एरियाज, राइट, इन सारे एरियाज में अनएम्प्लॉयमेंट स्पेशली अमंग यूथ, डिसइल्यूजनमेंट विद लोकल पॉलिटिकल लीडरशिप और करप्शन चल रही है, हाँ, जियोपॉलिटिक्स और बॉर्डर विद म्यांमार। मणिपुर शेयर्स एन इंटरनेशनल बॉर्डर विद म्यांमार, तो वहाँ से आर्म्स का फ्लो है, ट्रेनिंग कैंप्स का फ्लो होता रहता है, एक्सचेंज है, मिलिटेंट सपोर्ट है, एंड सेफ हेवन्स across borders have all been documented, meaning those things are coming from Myanmar, जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं ये वाले ग्रुप्स को, सेपरेटिस्ट ग्रुप्स को। और जो ये पोरस इनका बॉर्डर है ना, हाँ, और इनकी फॉरेस्टेड टेरेन है, जंगल एरिया, कंटेनमेंट डिफ़िकल्ट है, और यहाँ पे मिलिटेंट लॉजिस्टिक्स को ये हेल्प करता है, बिकॉज इट इज़ टफ फॉर मिलिट्री आई गेस टू या टू मिलिटराइज द होल बॉर्डर। ठीक है। हुँ, हुँ, ओके, और क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है लैंड ऑटोनॉमी एथनिक कॉन्फ्लिक्ट। सो हुँ। competing claims over land between valley based Métis population and hill based tribal population, which is the Kuki and the Naga. Okay, so Métis people हैं वैली में, यस, यस, और हिल्स एग्ज़ैक्टली। पे हैं कुकी एंड नागा कुकी। पीपल। और इसमें ओके। इसमें रिलीजन का भी एक रोल है कॉन्फ्लिक्ट और सेपरेटिस्ट मूवमेंट में, क्योंकि मेटिस जो पीपल हैं वो मेजोरिटी लाइक 53% ऑफ देम आर लिव इन वैली, एंड मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन फॉलोज हिंदुइज्म। एंड देन जो कुकीज़ हैं मोस्टली क्रिश्चियन है। तो रिलीजन भी एक ओह, इसमें इंटरेस्टिंग। फैक्टर है, जो कॉन्फ्लिक्ट का वन ऑफ द फैक्टर्स इन द कॉन्फ्लिक्ट एंड सेपरेटिस्ट मूवमेंट जो है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हम्म, है। करेक्ट। यस, यस, आप आगे ओके। बढ़ें और। स्टेट, अभी 2023 में recent ethnic violence जो हुई है between हाँ, Metis and या, Kuki communities demonstrates how these tensions can escalate. या, Local policies जो favor करते हैं groups, quotas, scheduled tribe status, land rights, सारे इस disturbance के flash points ये हैं, ठीक right? है। Heavy-handed security measures such as imposition of armed forces act in Manipur have bred resentment. Oh, so इंडिया ने यहाँ पर, इंडियन गवर्नमेंट ने यहाँ पर इम्पोजिशन किया है आर्म्ड फोर्सेस का स्पेशल पावर्स, विच इज़ AFSPA, जो मणिपुर में इन्होंने रखा है, और इसकी वजह से लोगों में गुस्सा है और रिजेंटमेंट है। यस, यस, Oh, this is an interesting point. The large number of insurgent groups, estimates of nearly 60%, creates overlapping conflicts. So, okay, अगर मैं इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं, जो अब तक मैंने सब रीड करा है फ्रॉम हाँ, AI, हाँ, सो दैट्स देयर व्हाट वी नीड इज, टू डू, या, yeah, we need to paraphrase this यस, and break it down simply, यस, right? So there is like three or four or multiple local groups जैसे कुकी एंड मेटी पीपल और नागा पीपल, तो हाँ, इनके बीच में भी टेंशन है, नंबर वन, हाँ, राइट। हाँ, नंबर टू, इनकी इंडियन गवर्नमेंट के साथ सिंगुलर लेवल पे भी टेंशन है, और इनकी एज अ ग्रुप लेवल पे भी इंडियन गवर्नमेंट के साथ टेंशन है। और ये जो टेंशन्स हैं, इसको फ्यूल कर रहे हैं या एड कर रहे हैं प्राइमरीली म्यांमार से, जो वहाँ के काउंटर पार्ट्स होंगे, हम्म, वाया आर्म असला और मिलिट्री इक्विपमेंट और ये सब चीज़ें। और ठीक है। यस, यस, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, क्योंकि इसमें अगर आप इस होल सेपरेटिस्ट मूवमेंट का गोल देखो तो गोल क्या है? इंडिपेंडेंस एंड सोवरेनिटी ऑफ मणिपुर, दैट्स द गोल, यस, राइट? 100%। एंड देन उसमें मेन जो आइडियोलॉजी है वो आपकी ऑब्वियसली नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी का पार्ट पढ़ाया जा रहा है, लेकिन जो एड दी जा रही है दैट कम्स फ्रॉम समवेयर आउटसाइड, वो यहाँ पे नहीं है, यहाँ से नहीं है, वो हाँ, हाँ, हाँ। और गवर्नमेंट आई एम रिस्पॉन्स श्योर, तो ऑब्वियस आई है। एम श्योर मणिपुर के भी, म्यांमार के भी ऊपर कोई डैडी बैठा होगा, राइट, विल एग्जैक्टली, टॉक अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। हाँ, बट माय आवर होल थिंग टुडे इज टू अंडरस्टैंड नॉर्थ ईस्ट, यस,
हाँ, सिर्फ नॉर्थ ईस्ट नहीं, वी विल ऑल्सो टॉक अबाउट पंजाब, विल टॉक अबाउट तमिलनाडु, विल टॉक अबाउट मे बी JNK. I know a lot of we'll people know see. about JNK Yes, already, but yes. north east is going to be the main crux of today's podcast. तो ये this is really interesting. Okay, let's go to the next point. What separatism means in Manipur's context? कि उनके हिसाब से separatism क्या है? नंबर एक है full independence हाँ, succession. Some groups, especially जो मेटी बेस्ड ग्रुप्स हैं, UNLF, प्रीपैक, yeah. PREPAK, KYKL, ये डिमांड कर रहे हैं सॉवरन स्टेट ऑफ मणिपुर आउटसाइड ऑफ Yes. इंडिया. ये Independent चाहते Manipur. हैं Yeah. 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 statehood. Yes. Tribal, some tribal and hill groups seek a separate state or union territory within India. Example, Kuki land rather than succession from India. हाँ. So, okay. इनके हैं okay, they also have complex hybrid demands. Some groups may settle for a high degree of autonomy while publicly using succession rhetoric or to strengthen bargaining. ठीक है. And ethnic versus territorial versus ideological demands. ये ये पॉइंट कह रहा है कि इट्स नॉट जस्ट पॉलिटिकल बट डीपली टाइड टू एथनिसिटी, which is Métis versus Kuki versus Naga peoples. टेरिटरी जो है, वैली वर्सेस हिल्स. आइडियोलॉजी जो है, सोशलिस्ट, माओइस्ट वर्सेस ट्राइबल नेशनलिज्म. Hmm. और Hmm. रिसोर्सेज के ऊपर भी ये फाइट है. सो इनके लिए सेपरेटिज्म का मतलब है फुल इंडिपेंडेंस, जो भी हमने समझा. ठीक है, हाँ. पूरी स्टेटहुड चाहिए इनको. Yes. एंड लेट्स ट्राई टू सी दिस फ्रॉम अ वेरी इवन सरफेस. ठीक है. ब्रिटिश सेपरेटिज्म हुआ पहले. ब्रिटिश से हमने Exactly. Yeah. स्टेटहुड लिया, राइट. वी Yeah. गॉट द डोमिनियन स्टेटस, देन वी बिकेम अ कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक Hmm. लेटर ऑन 50 में, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप हुआ. तो उस समय आई थिंक वल्लभ भाई पटेल वॉज एट द फोर फ्रंट सारे स्टेट्स को इंडिया में लेके आने के लिए, अमंग अदर पीपल फॉर श्योर. बट आई थिंक सरदार पटेल की सबसे ज़्यादा बात की जाती है. Hmm. एंड जब ये मणिपुर को लाया गया, देन दीज गाइस, दे फेल्ट, और दीज ग्रुप्स, these guys felt कि इनको इनके साथ पार्शल वो अनइक्वालिटी हुई. दे वर Hmm. नॉट गिवन फुल स्टेटहुड ऑफ देयर ओन. Yeah. और मैंने क्यों बोला कि लेट्स ट्राई टू सी दिस फ्रॉम अ वेरी इवन प्लेन ग्राउंड, Yeah. क्योंकि इफ म्यांमार इज एडिंग इट, or let's say even China is aiding it, right? Yeah. I'm sure Indian government is also doing their thing as well, right? Yeah. जो इनको आपस में लड़ा रही होगी, which is हाँ. today's BJP or Congress, which was for the 70 years before BJP. So why this resolution is so difficult? Okay, multiple fractured groups with different हाँ. aims. Even Yes. within one ethnic group, there are splits and factions. Yes. तो आपस में भी उनकी tiffs and wars चल रही हैं. Terrain and geography जो है, hills, forests, jungles, border with Myanmar, provide training bases, smuggling routes, safe havens for these militants. Overlapping ethnic violence means that if one insurgency stops, ethnic grievances can fuel fresh conflict. स्टेट पॉलिसीज, लैंड कोटास, ट्राइबल स्टेटस, ये सब कॉन्टेस्ट किए जा रहे हैं डिफरेंट ग्रुप्स के हिसाब से, जिससे कि ज़ीरो सम परसेप्शन बन रही है. लास्ट जो पॉइंट्स हैं वो कह रहे हैं सिक्योरिटी अप्रोच अलोन, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के थ्रू हाँ. अगर आप करो विदाउट रिस्पॉन्डिंग, पॉलिटिकल स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स टेंड्स टू हाँ. exasperate resentment. तो मतलब अगर आप वहाँ मिलिट्री पैरामिलिट्री वहाँ इन्फोर्स कर रहे हैं, which will of course lead to more anger, right, among the population. और जो क्रॉस बॉर्डर डायमेंशन है ना, लास्टली, दिस ब्रिंग्स एक्सटर्नल एक्टर्स एंड वेरिएबल्स बियॉन्ड इंडियाज इजी कंट्रोल. ओके. Hmm. सो आई थिंक दिस इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, जो भी हमने जो जो चीज़ें
लर्न करी हैं. I Yes. do want to talk about the key takeaways right away, and after that we'll go on to next one. So the ठीक है. separatist movement in Manipur is not monolithic. ये एक तरफा या एक सोर्स से नहीं आई है. It Exactly. involves valley-based Métis groups seeking independence, hill-based groups seeking separate statehood or autonomy, and Yeah. ethnic conflicts that overlap with insurgency. और एक की टेकअवेज में है कि जो लैंड मर्जर और आइडेंटिटी प्लस सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है, प्लस टेरेन जो इतना डिफिकल्ट है, प्लस जो इंडियन स्टेट का रिस्पांस है, ये परफेक्ट एक इंसर्जेंसी का इकोसिस्टम बनाता है. सो मतलब देर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू दिस, राइट. एक जगह आपका आपकी आइडेंटिटी पे आपकी कॉन्फ्लिक्ट है एक दूसरे के साथ, फिर आपके वहाँ सोशियो इकोनॉमिक भी इतना इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप नहीं है, जॉब्स नहीं है, और उसके ऊपर से आपका टेरेन और बॉर्डर इतना वो इजी टू मैनेज नहीं है. एंड देन हाँ. जो इंडियन गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सेज हैं वो आपके लिए परफेक्ट नहीं है. तो ये मतलब इट बिकम्स परफेक्ट केओस और इंसर्जेंसी इकोसिस्टम. ठीक है. Yeah. One of these takeaways very interesting, which is many groups have formed, split, merged, some engaged in talks, and others continue armed struggle. The current crisis, जो कि 2023 से चल रहा है, makes the situation more volatile, Hmm. जो कि ethnic violence को और ज़्यादा fuel कर रहा है. यस. सो Okay. ये सारा कुछ सुनने के बाद वी आर नॉट सेइंग अगेन फॉर आवर ऑडियंस कि हमें पूरे जो कॉन्फ्लिक्ट है उसका ज्ञान हो चुका है. वी नो द कॉन्फ्लिक्ट अपसाइड डाउन. वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड इट सो दैट वी कैन हेल्प सम ऑफ आवर ऑडियंस टू अंडरस्टैंड कि कॉन्फ्लिक्ट है क्या. एंड सो फार आई थिंक वी हैव ब्रोक इट डाउन. एंड नाउ pretty much And even guys, audience we have. are Yes. Yes. surface level students अभी तो. ठीक है ना, अभी Yes. हम डीप में नहीं जा Exactly. रहे हैं. We are at the surface level. I know it is looked down upon, but we don't Yes. care. We don't give a fuck. We told you Yes. guys in our last episodes as well. We're just two guys talking shit, trying to Yes. understand, learn, have fun, right? So Yes. that is our way of doing this, and we are unapologetically trying to do our thing, right? Pretty Yes. much. So But if अगर आप yes. इसके मैप पे आएंगे ना, हीरा हाँ. भाई, हाँ. इफ यू लुक एट मणिपुर, ठीक है, जो Yes. कि बिल्कुल एक ईस्टर्न टिप पे है, राइट. हाँ, मतलब it इट just. इज Yeah. it is fully covered by म्यांमार ऑन द ईस्टर्न साइड. थोड़ा सा इंडिया है वेस्ट पे मणिपुर के, right? Hmm. But Hmm. mostly it is all, and you can see even in the maps, if you zoom in, it's all green and like hills and jungle, जो है ना terrain इसका. So that Beautiful does make area. sense. Yeah. But at the मिजोरम आ same time, गया na, आपके इस if you साइड. जी. look at this, you might be able to see the border line, right? So the border line is in the black color, as I can see it. But I feel like there is, if you look at the area of the map, that I think Manipur, even all the eastern states share a big, huge border with Myanmar, bro. Like I feel like it's on a similar proportion to Hmm, India. Similar proportion I to India guess. if you look at the size, because western side, yes, we do get a little bit, and on the north too. Chalo, we can say कि हाँ ठीक है I थोड़ा don't know वहाँ से if settled. this is, we could be wrong. Is this Bangladesh जो चट्टोग्राम है? I think this is Bangladesh maybe, because No, मणिपुर no, के no. नीचे Bangladesh. If मिजोरम you आ if you गया. zoom out, बांग्लादेश दूसरी तरफ को है. बांग्लादेश आपका मेघालय के बिल्कुल नीचे है. मेघालय हाँ, के पर नीचे वो और वेस्ट मणिपुर बंगाल के के बीच में. वेस्ट में है. पर हाँ मणिपुर की ये अभी हम बात कर रहे हैं ना, मणिपुर का हाँ. वेस्ट जो हुआ दैट इज बांग्लादेश, राइट. और हाँ. इसके नीचे इसका पूरा बॉर्डर लाइक इट इज सराउंडेड बाय बर्मा या प्रेजेंट डे Yes. म्यांमार. Yes. सो It totally just, दिस it's इज all अ लिटिल, Myanmar, Burma. it is sad the way the things are, right. uh, but I hope. 100. Just because that's what I was telling you. क्योंकि जब it has been a disconcern for so long, like people have not discussed
they have not paid attention, and they have not given the time to analyze these issues and talk about in the mainstream media, so that people can understand and talk Mm, about it, like, okay, this has been happening over there, people are getting killed. Pretty much in 2023, remember the conflict we were talking about, the Métis and Kuki conflict they had in yeah. 2023. So it happened after, I think, as much as I read, is because of the court order that was granted to Métis people, Métis, Okay. and granting them a scheduled, what do you call it, a tribe status. So they got a tribe status, Oh, and because of that, it kind of sparked a fear on the the other cookie people, which were people or cookies, the right? Naga Yes, people? yes, Oh. cookies, because they were afraid, because our land is going to go, because they have a status, we don't, right? And then ब्रो आई बी over, वेरी ऑनेस्ट, आई बी वेरी ऑनेस्ट, ये जो इंडिया में स्टेटस देने का ये जो ट्रेंड है ना, या जो yes, इंडिया को मजा आता है ना, yeah, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, आई डोंट गेट इट, दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन। ठीक है, जनरल कैटेगरी एंड एससी कैटेगरी एंड एसटी कैटेगरी, और फिर हम कह रहे हैं oh, we want to be modern, no, like no, no, shut no, up. no, but if you pay attention to this, it was a very sensitive issue, right? And they, Yeah, like, willingly granted a court order saying that, okay, Metis people will have a scheduled tribe status, by ignoring the fact that there are cookies, they knew about him, right? And unke ek is decision ki wajah se 200 people got killed, thousands were displaced fuck. at the time, bro. And it was a big mess. It was a big mess over there. Media didn't cover it at the time, but if you look at the numbers, 200 people got killed just for that. Is a big number. Like, it's a big giant number, bro. 200 people. That's so fucked, eh? That was bad. That was evil at the time in 2023 when it happened. And then, uh nope, ये there is no हिंदुस्तान में docket. कब बंद होगा यार, कि But ये स्टेटस देना और सब कुछ, आप आपको हम एक्नॉलेज करते हैं और ये सब चीजें, आई डोंट exactly, नो, like, why do you आई need to डोंट गेट इट, acknowledge आई them? They डोंट, are a part of the, they are a part of the ब्रो country. इट्स नॉट Why? पार्ट, दे इंडिया, Right? सिंपल, They are राइट, और Indians. दे Why आर, would you say ki ha, you have this status, right? And then you leave the other side at the same time, like, they were gonna do या it, because you just trying to patronize one group of people. What do you think the other ones are gonna do? So it was, yeah, yeah, I feel बट like, स्टिल इट इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव, बिकॉज आई पर्सनली, मेरे को नहीं पता था इतना कुछ, अभी आई एम श्योर वी जस्ट स्क्रैच द सरफेस लेवल 1% राइट नाउ, आई नो देयर इज probably 99% जो हमें पता भी नहीं है, बट स्टिल of इट इज़ course, वेरी of इंफॉर्मेटिव, course, एंड yes. it is interesting to see what's happening in Manipur. क्या कहते हो आप, चले नागालैंड पे थोड़ा नॉर्थ? Yes, yes, we can probably head over there now, because I think, as per our knowledge and as much as we understood from whatever we searched on the web, I think this is what we came out with. Ki we understand the issue a bit, not entirely, Yeah, because we are not the of experts, course. but based on that, it looks like, the surface level situation feels like ki, there are some groups and some tribes which do not Correct. want, or which have their, yeah, but it is so They want their interesting to own point out, even if autonomy. they, just imagine for a second, they get an independent Manipur, do you think the Okay. conflicts are gonna end with that? No, they're not gonna end with that. Yeah. There's going to be another conflict even after that. That's how it has been, like, take an example. The big prime example we have is when the British divided India into two countries, right? Do you think Yeah. the problem was solved after dividing it? No, the No, problems that are was still there, the bro. worst thing that the Somebody could British do, came up with. I think right? in their own, उनके खुद के दिमाग के हिसाब से they did a perfect thing, कि इन Yeah, सालों yeah, को yeah, yeah. लड़ाते रहो, ठीक है Yes. ना, ये आगे मत बढ़ पाए, इसकी क्योंकि, बॉर्डर पे इसकी प्रॉब्लम चलती रहे, उसकी बॉर्डर पे इसकी प्रॉब्लम चलती रहे, हाँ, और ये हाँ, लोग हैं भी थोड़े, लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट, ये थोड़े पिछड़े टाइप के लोग हैं, इनके yes, लिए अपना रिलीजन, अपना कुल देवता, अपना हाँ, भगवान, अपना yes,
अल्लाह इनके लिए ये Yeah. चीज़ें ज़्यादा है rather than to grow and develop and have a better country. So I think Yes. for from their point of view it was a Yes. master stroke कि हाँ इनको इनको काटो, यहाँ Uh, पे ऐसी सी बॉर्डर लगाओ uh, and just watch the drama, sit down, like enjoy and see what popcorn और happens. ये लोग करते रहेंगे exactly, right? Yeah. And it's the same thing which is happening throughout the world. It's not just Indian subcontinent, we Yes. know that. Yes, yes, yes. Or if But you, that's why I took this example to compare the situation over there. That even if it happens, wherever they're demanding, it's not yeah, going to end. It's just where is it going to end? They will have another conflict. Then that independent Manipur or Manipur will have two other Manipurs divided into. yeah, of Right? course, That's how it goes. Uh, Anyway, exactly. that's all we could understood from this, and it was a bit more informative for me too, like to see how things are. We will probably, I'm pretty sure we will do a detailed podcast about the history and why it has been this way separately, because we cannot, I think, wrap it up in a single podcast. It's a way too big of a monster to, डेफिनेटली तभी right? हमने बात करी ना कि वी आर ओनली डूइंग सरफेस लेवल रिसर्च एंड रिकॉर्डिंग इट टुडे एंड वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट वन प्लेस ओनली. Yes. We are going to talk about Nagaland, Assam. We are going to talk about Punjab. We are going to talk about Tamil Nadu, right? And the newly erupted issue in Leh Ladakh, Ladakh for Yes, sure. that's something to talk वो about भी too. हमें टच करना है एंड वी आर अ लिटिल बिट short on time, so let's hop on to the next place we are going, a little north of Manipur, which is Yes, Nagaland. Nagaland. Yes, Nagaland is up अब north चलते हैं हमारे from भाई Manipur. साहब के पास Yes. And then if जो हमें बताएंगे. Nagaland का जो border है pretty much the same way as Manipur has, कि वो share करता है Myanmar के साथ. And then I can tell you from that, the groups that are feeding up this movement in Manipur, pretty much the same thing is happening in Nagaland too. Maybe there will be different groups of people who are who are in that separatist movement, but Hmm. the concept remains the same though. That doesn't change. Yeah, but that's a theme, right? It's the Yes, separatists theme, yes, yes, yes. people That who want to get stays out of the India. same. So let's see. Yes, what's going on in Nagaland right now? What is the ओके, situation over there? मेरे को आंसर आंसर दे दिया है. सो ठीक है, go let's for it. get to this. For Nagaland and Assam, both. ठीक है. Yes. Historical roots, we'll talk about Nagaland first. Historical roots कह रहे हैं the Naga people, comprising a number of tribes living in today's Nagaland, parts of Assam, Manipur, Arunachal Pradesh, and across the border into Myanmar, had a distinct identity, village systems, customary laws under British rule. ठीक है. अगस्त 1947 में जब the day before India's independence, Naga National Council (NNC) declared कि Nagas would be independent of India. और फिर आया एक key Okay. turning point, which says the 16-point agreement of 1960 between Government of India and representatives of Naga people, leading to the creation of State of Nagaland in 1963. तो मतलब Ah. थोड़ी देर के लिए they were independent, and then turning point came in 63 जब 60s में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड representatives of Naga people they made the state of Nagaland in 63. Okay. उसके बाद आज क्या जो समय है उसमें मेजर एक्टर्स हैं. और NNC Yeah. was the early body. Over Yeah. time, armed insurgency grew, splits happened within NNC. The most significant insurgent group जो है Nationalist Socialist Council of Nagaland and Isaac Muiwa Mm-hmm. NSCN IM, Hmm. formed by leaders including Isaac Chishi Su and Thuyangaleng Muiwa. Again, I'm Mm-hmm. sorry if I'm butchering these pronunciations. Um,
So these leaders, with the aim of Greater Nagaland, sometimes called Nagalim, uh, that would include all Naga inhabited areas, including across state boundaries or even into Myanmar. एक another faction जो है, which is Hmm. Nationalist Socialist Council of Nagaland, Khapalang, Hmm. NSCNK, which is led by SS Khapalang, which split from the above group जो हमने जिसके बारे में पढ़ा, and is less engaged in talks with the Indian government. Hmm. Demands span full independence for a sovereign Naga nation or significant autonomous plus protections for customary laws, land rights, identity. Uh, Over time, जो outright succession चल रहा है, it has softened for some groups, but not for all. So there are still active groups which are fighting for their independence and autonomy within the Naga tribes. ठीक है ना? So key Hmm. milestones and phases में 70s और 80s में क्या हुआ है? Escalation of armed struggle हुआ है, multiple splits हुए हैं, increasing militarization of Naga insurgency हुआ है, Hmm. 1997 में आ जाते हैं, Hmm. ऑलमोस्ट 17-20 साल के बाद सीज फायर अग्रीमेंट साइन किया गया था Huh. इंडियन गवर्नमेंट और Yes. NSCN IM कौन Hmm. सा वाला है जो सबसे बड़ा नेशनलिस्ट काउंसिल है जो हमने जिसके Okay. बारे में ऊपर पढ़ा था जिसके दो लीडर्स थे। Huh. उसके बाद 2015 में क्या हुआ, फ्रेमवर्क अग्रीमेंट बिटवीन इंडिया Yes. और NSCN IM के Huh. बीच में। ठीक है, हालांकि इसमें बहुत सारी डिटेल्स अनडिस्क्लोज रही, प्रोसेसेस इसमें अनफिनिश्ड रहे, but still it marked as a major hope point between Indian government and NSCN IM. आजकल का अब करंट स्टेटस पे आते हैं। नागा insurgencies often described as one of the India's longest running internal conflicts। ठीक है, while a major faction NSCN IM is in talks and has reached frameworks, other factions remain outside and may still engage in armed struggle for their independence। One of the biggest striking points क्या है, which constitutes Nagalim, जो नागा पीपल के हिसाब से जो नाम है वो है नागालिम, because Naga inhabited areas across several Indian states, even into Myanmar, resolving this implicates multiple state governments। ओके, ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर आपको पूरा का पूरा नागा पीपल का एक लैंड बनाना है, राइट, विच इज दे वांट टू कॉल नागालैंड, उसके लिए आपको असम से भी लड़ना पड़ेगा, Hmm. मणिपुर से भी लड़ना पड़ेगा, अरुणाचल से भी Hmm. लड़ना पड़ेगा और म्यांमार से भी लड़ना पड़ेगा। Yeah, और because इंडियन गवर्नमेंट तो है ही है, तो है राइट। ही है। सो इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन, इट इज़ अ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स फाइट। इसमें सिक्योरिटी और राइट्स में क्या है, the presence of laws like Armed Forces Special Powers Act in Naga areas, alleged human rights abuses, counter-insurgency operations, which are obviously being done by the Indian government, complicate trust and reconciliation. Hmm. Social economic growth remains uneven. Such conflicts have lasting impacts on normal life, investment, growth. Of course, धंधा नहीं आएगा, काम नहीं होगा, जगह stability नहीं होगी, पैसा नहीं आएगा, right? And people will be always occupied with these things because there is no development, right? Hmm. Okay. लेकिन This is इसमें अब actually very देखो, interesting. इसमें कंक्लूजन में यही निकलता है कि जो सेपरेटिस्ट मूवमेंट थी टू गेट अ इंडिपेंडेंट नागालैंड, वो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हुई है अब। क्यों? बिकॉज एज यू मैंशनड दे शेयर बॉर्डर्स विद so many states. The war Yes. will be like, it will be a war, basically you will get into a war to lose, right? And then on top of that, the government has, they have softened it up with the aspiration of getting Nagas their identity and self governance and their dignity. Those are the tools they use to soften it, and it has been Hmm. successful, I can tell you. As per the data I'm seeing, so the peace process is definitely slow, but has transformed Nagaland from a war torn region into a relative calm, you can say, for now.
अ, और Yeah. इसमें इसमें ये भी है कि ये जो 2 चीज़ें हैं ना कि दे गिव रिकॉग्निशन टू नागाज़ आइडेंटिटी एंड सेल्फ गवर्नेंस की जो Right. एक आप देते हो ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट चेंजेस Hmm. थिंग्स because it's easy to say, oh yeah, we're gonna get an independent state, right? But when I hand you over your state for you to manage, then the Yeah. reality sinks in, and you're like, oh no, I can't even manage my own state right now. So how can I Definitely. actually demand for something, something of a less proportion I cannot even run, right? तो आप full Well, definitely. independence को कैसे, how would you process that, right? It Yeah. actually holds them accountable Yeah. if they demand that, and you can question them, like, if you cannot run your state like right now, how are you going to run your country, right? So I You feel know, like it's a these good things tool I they have also used. think they go hand in hand too, right? अगर Yeah. आपकी अब मेरी स्टेट है एंड हाँ. मैं इसमें शांति अगर लेके आना है, उसका एक Exactly. तरीका ये है कि मैं इसके अंदर बिजनेस लेकर आऊँ, राइट? हाँ. इसके हाँ. अंदर इन्वेस्टमेंट लेकर आऊँ, डेवलपमेंट हाँ. लेकर आऊँ, ताकि ये जो लोग खाली बैठे जो प्रोटेस्ट पे चले जाते हैं, हाँ. दे Yes. हैव वर्क टू डू, राइट? जो आम Yes. गरीब आदमी है, Yes. he can make a few bucks and actually Yes. live a better life. पर हाँ. जब लाइक आई सेड दे गो हैंड इन हैंड, राइट? अगर ये चीज़ नहीं हाँ. होएगी तो वो हाँ. वो वो लोग क्या करेंगे? खाली बैठे लोग वो यही करेंगे। अगर एट द Yes. सेम पॉइंट अगर इंडियन गवर्नमेंट वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं लेके आ रही या उनको लेके नहीं आने दिया जा रहा, देन इंडियन गवर्नमेंट शुड ऑल्सो रियलाइज कि ओके दिस इज गोना कंटिन्यू ऑन, राइट? दिस Yes. इज नॉट गोइंग टू एंड until unless आप if you pull the same tactic that you pulled with Kashmir, with Yeah. JNK, राइट? अगर आप वहाँ पे स्टेटहुड ऑटोनॉमी हटा लेते हो एंड प्रेसिडेंट्स रूल लेकर आते हो, दैट वो Hmm. थोड़ा धक्के से करना पड़ता है, बट देन Exactly. दैट somehow becomes successful, a little bit successful, I can say. Yes, the movement was very like ये जो नागा इंडिपेंडेंस मूवमेंट थी ये भी काफी लंबी चली है. It's like so far as you can see from 1918 to like 2015 to the framework that Mr. Modi Hmm. recently signed, right? So it has a long Correct. history, bro. But yes, I think things are, hopefully they're going to the right direction. But yes, as you said, these things go hand in hand. If you want Yeah. them to run their state, you need to provide them the resources to run it. At the same time, you can't just Correct. set them for failure and then later on blaming them for the Yeah. disaster that has happened, which is caused by you. Totally. Totally. 100%. So Hmm. yes, it is. It is. Okay. It is an interesting topic we picked today because we have never, ever, even randomly out of the blue talked about it. Never. अरे भाई, So आपको पढ़ाया नहीं जाता, आपको exactly. आपके न्यूज़ में वो अगर दिखाते भी हैं, इट इज़ लाइक अ 15 सेकंड थिंग, राइट? Yeah. इट दे डोंट टॉक अबाउट दीज थिंग्स इन डीप, No. स्पेशली द हिंदी बेल्ट। No. आई कैन टेल I'm. यू, Yes. हिंदी बेल्ट And इज टोटली फोकस्ड विद पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, जब वो थोड़े बोर हो जाते हैं, फिर जेएनके yes. में, फिर खालिस्तान, राइट? और या दिल्ली की अपने इश्यूज, they will never go in deep. And we hope, and this is the idea of today's podcast, okay, we can learn about things which are being slept on, which are not Yes. in the mainstream, right? So Yes. there can be more awareness, there can be hopefully resources, money which is pushed down here, not just army, right? ताकि यहाँ कुछ हिसाब से पीस आए, ठीक है, थोड़ा यहाँ प्रॉस्पेरिटी आए, और उससे भी ज़्यादा, आई डोंट नो, आई एम नॉट, we're not God, we're not government officials, or we Yes. just want to learn this, right? Yes, we want to see what is in there. Like, if even if you like do a survey, or like a rough survey, bro, I can tell you half of the population that we have in the country would not even be able to name all the states we have in the Northeast. Yeah, Leave the correct. capitals of each state, just the names of the state. I can tell you, this is how blind and uneducated we are and ignorant we are, to not just Yeah. even remember the name of the states. And then on top of it, as we spoke about the mainstream media, we are Yeah. gonna get to that. We are gonna get on media soon on on a different उसके लिए podcast, तो अलग चलेगा, because हाँ, that's a अलग different animal पॉडकास्ट। to wrap up in a single podcast. But we will come to that. We will come to that in a different अब episode. चलते हैं असम पे।
Yes, let's head into Assam. Yes, let's take a look. Where is There we go. Right So, on. Done. separatist movements in Assam. Okay. Assam ka border is very interesting because it touches. Uh, It it is touches, bro. on It one, two, touches like three, 4 and 5. Okay, it is a very interesting border. I think they touch Bangladesh, Bhutan, Arunachal bhi or Nagaland bhi. So let's see how interesting is Assam's situation. सो हिस्टोरिकल रूट्स आसाम में ये है कि जो इंसर्जेंसी यहाँ चल रही है, इट हैज़ hmm. डिफरेंट स्ट्रैंड्स, ठीक है, Okay. पर एक ही की ओरिजिन है, जो कि एंटी इमिग्रेशन आउटसाइडर एजिटेशन जो है ना, जो अच्छा। लीड किया जाता है बाय ऑल असम स्टूडेंट यूनियन AASU और अदर ओके। ग्रुप्स की तरफ से, ठीक है। ठीक है। अर्ली 80s में पर्टिकुलरली ओवर perceived large influx of illegal immigrants, especially from what is now known as बांग्लादेश, ये जो आसाम में आए हैं, ठीक है। या। हमारे लोग कहते हैं प्रवासी, राइट, जो प्रवासी हाँ। आसाम में एंटर करे हैं बांग्लादेश से, ठीक है। हाँ। इकोनॉमिक इश्यूज क्या हैं, आसाम के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं सर, चाय है, टी लीव्स, ऑयल, टिम्बर है, बट मैनी फेल्ट के लोकल असमीज पॉपुलेशन डिड नॉट बेनिफिट एडिक्वेटली, combined with perception of being neglected by central government. ठीक है। ओके, सो वो उनके लोकल इश्यूज हैं जो वहाँ के लोग सोचते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो मेजर एक्टर्स हैं असम में और उनकी डिमांड्स क्या है, थोड़ा सा ये इसमें जाते हैं। फर्स्ट इज यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम, ASOM, असोम। या। या। इसकी एब्रीविएशन है ULFA, यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असोम। ये फॉर्म हुई थी 79 में हम्म। बाय शिव सागर, एट शिव सागर, बाय यंग असमीज इंटेलेक्चुअल्स। इनका गोल हम्म। है सॉवरन इंडिपेंडेंट असम, ठीक है। फिर सेकंड जो है एक्टर इसके अंदर वो है बोडो मूवमेंट। बोडो है इंडिजिनस ट्राइबल ग्रुप असम के। इनकी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैंड NDFP और अदर ग्रुप्स जो कि डिमांड करते हैं सेपरेट बोडोलैंड और अ सिग्निफिकेंट ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी ऑटोनॉमी। Other groups जो हैं, there have been multiple smaller insurgent organizations in Assam जो कि ट्राइबल, रिलीजियस, एथनिक हैं। फॉर एग्जांपल मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स ऑफ असम, मल्टा इनका एब्रीविएशन है, इनकी हैं थोड़ी सी इस्लाम सेपरेटिस्ट लर्निंग्स। हम्म। ओके, सो असम के अंदर हैं बोडो पीपल, ठीक है, जो इंडिजिनस पीपल हैं, हाँ। ULFA वाले लोग जो कि अपना सेपरेट असम चाहते हैं, बोडो पीपल अपना सेपरेट बोडोलैंड चाहते हैं, और जो ये मल्टा वाले लोग हैं मुस्लिम यूनाइटेड लिबरेशन टाइगर्स, ये चाहते हैं अपना इस्लामिक असम। तो इनके अभी तक के माइलस्टोन्स क्या हुए हैं, फेजेस क्या चल रहे हैं, थोड़ा इस पे अब आ जाते हैं। 1979 टू 85 के बीच में क्या हुआ है, ULFA became active. Assam Accord was signed in 85 between Indian government and AASU, जो कि ऑल AASU एंड AAGSP क्या है, ऑल असम गाना संग्राम परिषद, टू हम्म। एड्रेस इलीगल इमिग्रेशन। सो आई थिंक ये 2-3 बार इन्होंने बोला है इसमें, सो आई गेस असम इज ऑल्सो गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ इमिग्रेशन इश्यूज, कि वहाँ के जो लोकल लोग हैं दे आर फेड अप ऑफ द इन्फ्लक्स ऑफ पीपल, राइट, और जो इतना रिच स्टेट है इन ऑल दीज रिसोर्सेज, वो या। उसका बेनिफिट नहीं उठा पा रहे हैं बिकॉज ऑफ the population increase, right? यस। Mm, ओके, नेक्स्ट आते हैं माइलस्टोन क्या है, 80s 90s में क्या हुआ। ULFA ग्रो करता है, ठीक है, engages in armed struggle, attacks on security forces, economic targets, extortion, kidnapping. ओके, ये 80s 90s में ULFA, इट गोज सुपर साइन मोड।
Okay. और ओवर द इयर्स क्या हो रहा है, मल्टीपल पीस अकॉर्ड्स साइन हुए हैं, सेटलमेंट्स हुए हैं विद इन वेरियस इंसर्जेंट ग्रुप्स, जैसे कि द बोडो पीस प्रोसेस जो अग्रीमेंट हुआ है 1993 में, 2003 में और 2020 में भी। अच्छा। और फिर 2023 दिसंबर के अंदर प्रो हाँ। टॉक्स फैक्शन ऑफ यूएलएफए साइंड अ पीस अकॉर्ड विद सेंटर एंड असम गवर्नमेंट। ओके। तो ये अभी लेटेस्ट जो माइलस्टोन इनका अचीव हुआ है। ओके। After this, we'll talk about the current status and challenges. So, ठीक current है। status में है, while major progress has been made, some groups have surrendered, signed accords, integrated into political means mainstream. ठीक है, इंसर्जेंसी पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं हुई है, अभी भी ओके। पॉकेट्स हैं जहाँ पे some groups remain outside of the peace talks, right? They are हाँ still हाँ। active. Overlapping of demands and identities. असमीज नेशनलिज्म जो है, यूएलएफए ट्राइबल ऑटोनमी जो है, बोडो, कार्बी एट्सेट्रा, इन और जो रिलीजियस टेंशन्स हैं इमिग्रेशन और आउटसाइडर्स और लोकल्स के बीच में, ये हाँ। सब थोड़ा कॉम्प्लिकेट कर देता है। सो यूएलएफए इज़ द यंग पीपल ऑफ यूनाइटेड असम, ठीक है। ओके। ये ये एक आपका साइड है। एंड ठीक है। देन योर बोडो पीपल और जो इंडिजिनस वहाँ के ट्राइब्स हैं उनके अलग चीज़ें हैं। दे ठीक दे है। वांट देयर डिफरेंट थिंग्स। उसके बाद जो रिलीजियस और एथनिक टेंशन्स चल रही हैं कि ये बांग्लादेशी आ गए हैं या फिर हाँ यहाँ हाँ हाँ। पर ये वाला रिलीजन ज़्यादा बढ़ रहा है या ये वाला कम हो रहा है या जो भी है। तो ये ठीक जो है। आपस में ये जो तीन चार चीज़ें लड़ रही हैं, right? हाँ। This is all part of Islam insurgencies. They are different parts of insurgencies in Assam. मैंने क्या इस्लाम ओके। बोल दिया क्या अभी? नहीं नहीं, I was आसाम gonna ही say बोला। Assam. Okay. हाँ। तो मतलब कि इस्लाम। इंडियंस बीइंग इंडियंस, लेट्स बी वेरी रियल। यस। हाँ, एक एक फाइट नहीं है हमारे घर में, हाँ सब कुछ ही चल रहा है। वहाँ वो कुकर पे दाल एग्जैक्टली भी रखी एग्जैक्टली है, पापा यस। से भी लड़ाई हो रही है, मम्मी की हाँ अपनी वो हाँ काम वाली हाँ। नहीं आई है, बच्चे यस। स्टडी नहीं कर रहे हैं। सो यस। इंडियन केओस बीइंग इंडियन केओस, ठीक है। दैट्स दैट्स व्हाट्स अब चलते हैपनिंग। हैं नेक्स्ट करंट स्टेटस पे। नेक्स्ट हाँ। करंट स्टेटस ये कहता है, इमिग्रेशन एंड डेमोग्राफिक फियर्स कंटिन्यू टू स्कार द पॉलिटिक्स ऑफ असम। असम अकॉर्ड जो है इसने न्यू लेजिस्लेशन लेके आया, लाइक सीएए, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, वी हैव हाँ। हर्ड अबाउट दिस फ्रॉम कश्मीर, राइट। और इससे ट्रिगर करी गई हैं एंजाइटीज अगेन, बिकॉज सीएए अगर लागू हुआ है तो जो वहाँ के बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स हैं उनके लिए हाँ। दिक्कत हो जाएगी, राइट। हाँ उनके एग्जैक्टली। उनको इश्यूज हो जाएंगे। सो ऑफ कोर्स देयर इज एंजाइटी अमंग द पॉपुलेशन। डेवलपमेंटल डेफिसिट्स जो चल रहे हैं, मैनी एरियाज आर दे हाँ। रिमेन अंडर डेवलप्ड, वहाँ पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट इज एट पीक, एंड दे आर ऑल ड्राइवर्स ऑफ ग्रीवेंस अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। मल्टीपल इंसर्जेंट ग्रुप्स ऑल्सो एंगेज इन एक्सटॉर्शन, पैरेलल हाँ। एडमिनिस्ट्रेशन, और हाँ। इन सर्टेन एरियाज दिस कॉम्प्लिकेट्स नॉर्मल गवर्नेंस, ठीक यस। है। गॉट इट। तो ये अभी तक की इनकी हैं करंट स्टेटस एंड चैलेंजेस असम के अंदर, ठीक है। हाँ। अब थोड़ा इस पे पढ़ते हैं कि कंपैरेटिव ऑब्जर्वेशंस क्या हैं और कॉमन थीम्स क्या हैं। थोड़ा अच्छा। इसको हम कोरिलेट करेंगे नागालैंड के साथ, जो अभी हमने इसके बारे में थोड़ा सा हाँ। समझा था, ठीक है। ओके। या। बोथ नागालैंड एंड असम्स मूवमेंट आर डीपली रूटेड इन एथनिक आइडेंटिटी। ठीक है। हिस्टोरिकल ग्रीवेंसेस अबाउट इंटीग्रेशन इनटू इंडिया या फिर जो मार्जिनलाइजेशन के साथ हो रही है। सो मतलब कि भाई हम असम के लोग हैं, हम बोडो पीपल हैं या फिर हम नागा पीपल हैं, हम इंडियन नहीं हैं। हम ये पॉइंट थोड़ा उसके ऊपर थोड़ा टच कर रहा है कि ठीक है। हमें ज़बरदस्ती से इंडियन बनाया गया है। वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम वेरी इवन लेंस, राइट। ताकि हम हाँ। समझें, अगर आप अपनी प्रॉब्लम को समझोगे नहीं, आप उसको फिक्स नहीं कर सकते बॉस, है ना। यू हैव टू स्टेप इनटू द शूज ऑफ इवन योर enemy sometimes or the other side sometimes to टू actually अंडरस्टैंड। tackle that, यस right? Because एग्जैक्टली। some wars you can fight, मेरे हिसाब से you can fight with arms and with people or हाँ। weapons, but some wars you can also fight psychologically too, right, and win them. यस।
Yeah, ओके, yeah, सो okay. एक और जो ऑब्जर्वेशन है, कॉमन थीम है दोनों में, वो ये है टेरिटोरियल लैंड क्वेश्चंस जो हैं इन हाँ, नागालैंड, जो नागालिम बनाना चाहते हैं नागालैंड के पीपल, राइट, हाँ, और असम के लोग हैं जो बोडोलैंड बनाना चाहते हैं, राइट, हाँ, और इमिग्रेशन और डेमोग्राफिक फियर्स भी दोनों जगह उतने ही ज़्यादा प्रेवलेंट हैं। और हाँ, जो रोल है इंडियन स्टेट का, ठीक है। कि सिक्योरिटी लेजिस्लेशन जो चल रही है वहाँ, काउंटर इंसर्जेंसी के ऑपरेशंस चल रहे हैं, हाँ, और डेवलपमेंटल नेग्लेक्ट चल रही है, ये ठीक है। दोनों जगह बराबर चल रही है। एंड आई एम प्रीटी श्योर मणिपुर इज आल्सो गोइंग थ्रू द सेम थिंग, Yeah, राइट। पीस एंड नेगोशिएशन have played roles in both framework agreements, yeah, ceasefires, ऑटोनॉमस काउंसिल्स, स्टेटहुड्स, पर फुल रेजोल्यूशन अभी भी दूर दूर तक कहीं नहीं दिख रहा है दोनों जगह पे। ठीक है। ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक अंडर डेवलपमेंट, वी जस्ट लर्न अबाउट दिस, अनएम्प्लॉयमेंट है यूथ के बीच में, रिमोटनेस है इतनी ज़्यादा रीजन्स में, ठीक है, जो कि हाँ, इंसर्जेंसी के लिए परफेक्ट ब्रीडिंग ग्राउंड है, राइट। यस, अगर आपका यूथ ही निठल्ला बैठा है तो इन ऑफ कोर्स देयर विल बी नो नो डेवलपमेंट और सोशो इकोनॉमिक अपटिक, कहीं वो प्रेवलेंट होगा ही नहीं। yeah, Okay, no, there is no, also it is hard, yeah. overlapping claims. अच्छा, For example, I yeah, like this point. For example, in Assam, some tribal groups claims overlap with Assamese nationalist demands. In अच्छा, Nagaland, some demand for a greater Naga land, which is called Nagalim, overlaps with yeah, territories in Assam and Manipur. तो स्टेट्स के बीच में फ्रिक्शन इससे हो रही है, वो आपस अच्छा, में ही लोग लड़ रहे हैं, ठीक है ना। और क्रॉस बॉर्डर अच्छा, जो डायमेंशन है, एक हाँ, वो भी लास्ट आपका पॉइंट आ ही गया है, जिसमें कि नागालैंड म्यांमार यस, उसमें एक्टिव है, और यस, असम में बांग्लादेश एक्टिव है, ठीक है, और हाँ, भूटान भी हाँ, एक्टिव है असम में, एग्जैक्टली, बिकॉज एग्जैक्टली, बॉर्डर्स टच हो रहे हैं। यस, सो यस। खिचड़ी पूरी की पूरी यहाँ पर भी एक्टिव है, कहने का मतलब ये हाँ, है, मतलब ये हमें लगता था कि इवन मे इन बी असम। ये नॉर्थ इंडियंस ही हैं जिनको मतलब जिनका मतलब 100 किलोमीटर जाते ही सब कुछ चेंज हो जाता है। बट ऐसा नहीं है, लड़ाई प्रीटी नहीं मच आई नहीं। थिंक आई फील लाइक इट्स ओवर देयर, इट्स द सेम एजेंडा, वही चीज़ चल रही है वहाँ पे भी। हाउएवर अगर हम ओवर अ लार्ज स्केल ऑफ लेंस देखें फ्रॉम द पास्ट टू टिल लाइक 2025, Assam feels like to be largely peaceful. Comparing it to like the situation we have in Manipur, I feel like Assam is still at a हम्म, better state. And then separatism, thoda sa from the past has shifted to the political and cultural autonomy rather than राइट। succession, right? Or ongoing issues, obviously, as you said, they have is illegal migration. That's a really huge big point. And then that's why I think they had this NRC and CAA debates, right? That's why this was launched. सी ए सर आई थिंक पूरे इंडिया पे लागू होता है, इसलिए वो Yes, इधर भी इफेक्ट करता है। इफ आई एम yes, नॉट रॉन्ग, आई थिंक एनआरसी इज ओनली फॉर जे एन के। yeah, आई कुड बी रॉन्ग, बट एनआरसी इज द नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, राइट। और जब वो सिटीजनशिप सीएए जब लागू हुआ तो वो नेशनल रजिस्टर, उसके साथ ही वो लॉ भी चलता है। सो इफ yes. यू एक्चुअली, अगेन वी अंडरस्टैंड इंडिया में ये लागू करना और एट अ ग्राउंड लेवल इट इज नॉट द इजीएस्ट थिंग, इट इज टफ, राइट, बट लेट्स से Please. इट डज गेट्स डन, राइट। तो क्या होगा, तो जो कि आपके इमिग्रेंट्स हैं, है ना, इंडिया के अंदर, दे विल बी दे विल बिकम इमिग्रेंट सिटीजन्स, और Yes, दे विल बी सेकंड क्लास सिटीजन्स और इलीगल एलियंस, और जो भी वट एवर कूल वर्ड इज गोइंग ऑन। yes, So of course this is a problem. I've also heard a lot of news about the illegal आधार कार्ड्स जो बन रहे हैं असम के अंदर ना, स्पेशली विद द बांग्लादेशी पॉपुलेशन। वो उसके बहुत सारे इन्होंने गिरोह जो हैं वो पकड़े थे, उनको उनको शट डाउन किया था। Like people being people, right, they are doing what yes, they can to survive, yeah, and to stay in India and to not yes, get out of India. आई वंडर exactly. उन लोगों का क्या थॉट होगा Yeah. अबाउट इंडिया, Hmm. बिकॉज यार आप तो शरण लेने आए हैं ना,
I wonder वो लोग I wonder what they think about. I wonder if somebody is doing news with the immigrants in Assam or in Nagaland, and their point of view कि जैसे you see the videos of Sikhs from Afghanistan या फिर Hindus in Pakistan, और Yeah. उनका क्या point of view होता है ना. So sometimes I wonder कि I wish there is more news and knowledge about this stuff. ओ यस, पर ऐसा ऐसा ये तो चलो आप, यू आर गोइंग वे टू फार विद दिस, बट यहाँ पे मेन स्ट्रीम मीडिया जो वहाँ के लोग हैं, जो एक्चुअल असम के लोग हैं, या फिर मणिपुर के ले लो, मिजोरम के ले लो, Hmm. नागालैंड के ले लो, उनसे ही बात नहीं करते हैं. इमिग्रेंट्स इज अ होल different side of things, I can tell you. A that guy will can be dream, that will sir. be least वो of हमारा ड्रीम ही है. their concern, you know. हम्म, हाँ, जो Yeah, they're बड़े like बड़े no. आपके वो है ना, न्यूज न्यूज रिपोर्टर्स, उनके उनके पास तो Yes, टाइम ही नहीं है यार. they दे always दे have a डोंट bigger इवन fish to गिव अ fry, bro. फक. They're like, oh no no no, इस तरह के हमें इस तरह की nuisance इसमें क्या हमारे है, दिमाग में मत इसका तो डालो कुछ यार. नहीं है. There's हाँ. और अगर nothing good एक्चुअल is में gonna come out of आपसे it. लैंड चला गया, फिर वो रोएंगे कि No, no, यार then there will be a big brawl out of it कि ओ ऐसे कैसे ये देशद्रोही गद्दार फलाना ढीमका चलेगा फिर उसमें, बताइए आपको. जैसे कि कल तक आप, सिंस टिल यस्टरडे आप उसी के बारे में रिपोर्टिंग कर रहे थे कि वहाँ पे ये कुछ हो रहा है. ऑल ऑफ सडन आप अब बन के रखवाले वहाँ पे लैंड के. एग्जैक्टली. So yeah, it's just another topic we will discuss it at large in a different podcast. But overall डेफिनेटली. situation, the bird eye view of the situation is this: that the fights are internal, and then I think a majority of the resolutions I see so far is going towards the to keep your identity, to run your state yourself, rather than Yeah, getting a full-fledged independence, as that is something, correct. it's tactically, and like you think about it, it's not possible in the region, geographically, where the states are. I feel like there is way too many करेक्ट. things going on नहीं नहीं, बिल्कुल. in order to achieve it. Okay, this was pretty cool learning about Manipur, Nagaland, Assam. ठीक है. नेक्स्ट I'll give you a choice, sir. Where are we going? We have two topics left. पहले आप तमिलनाडु जाना चाहते हैं या पहले पंजाब जाना चाहते हैं? I think we can pick one out of the two. That's what I'm asking you. आपको पूछ रहे Uh, हैं. we दोनों should के took ऊपर बात करेंगे, बट आई वांट यू टू पिक द नेक्स्ट वन. पहले कहाँ जाना है? let's go to Punjab. Let's discuss that लेट्स and गो then we'll go पंजाब. down. देन Yes, विल गो feel that. डाउन साउथ. हिंदू महासागर, इंडियन ओशन में एंड में अपना जर्नी खत्म करेंगे. ठीक है जी. Yes, yes, सो Kanyakumari वापस. हमारे चैट जीपीटी भाई साहब ने कहा है about the separatist movement in Punjab. It is Yes. called the Khalistan movement, which I'm Yeah. pretty sure by now half of India knows about, right? Yes. Because one thing you can count on to Punjabis is being loud. Even No, though no, no. But they might not be successful, yes, they're loud for sure. yes, that is a factor. But at the same time, I can tell you, the media wants this kind of a bite too. So this is Of why people course. know, because they are projecting it very nicely to the audience. Yes. Whenever they get a bite, they're like, "Ooh, this is happening in Canada, in Ontario, blah blah blah." On They the people get are on the street with their boomers. flags, Yeah. this and that. Yeah. नहीं, चलो ये अभी हम we're learning about the historical roots and backgrounds of the Khalistan movement, right? This is again, we'll go back to our opinions and everything after this. ठीक है. So for historical roots, decades जब इंडिपेंडेंस के बाद हुए, 47 के बाद, in multiple decades, many Sikhs in Punjab felt uneasy about their identity, the status of Punjabi language, Yes, distribution of regional resources जैसे कि पानी और river के rights, and the sense कि पंजाब का contribution, especially via Green Revolution, was not matched by yes, recognition. ठीक है जी. yes. अम, उसके True. बाद अनंतपुर साहब का रेजोल्यूशन बना 1973 में,
या। जो कि श्रीमोनी अकाली दल के वाया बना। हाँ। ठीक है, इसके अंदर laid out ठीक है। demands for greater autonomy of for Punjab, protections for Sikh identity separate यस। from simply being a sect of Hinduism. ठीक ओके। है, ट्रांसफ़र ऑफ चंडीगढ़ हुआ पंजाब से, इसको यूटी बना दिया गया, या। कंट्रोल ओवर रिवर्स एंड वाटर्स। तो ओवर टाइम क्या हुआ, सम एलिमेंट्स विद इन द सिख पॉलिटिक polity यस। began interpreting these demands as call for a separate Sikh state, या। especially given the mistrust in center-state relations and some centralized policies. ठीक है, इसके अंदर की एक्टर्स और उनकी डिमांड्स क्या हैं? द मूवमेंट फॉर अ सेपरेट स्टेट कॉल्ड खालिस्तान, लैंड ऑफ द प्योर, sought to crave it primarily out of Indian Punjab, though it in some articulations some of Pakistan's Punjab या फिर adjoining जो एरिया हैं उनके बारे में भी बोला गया है। तो ठीक है। militant organizations जो इसमें इंक्लूडेड हैं वो हैं खालिस्तान लिबरेशन फोर्स, प्रो खालिस्तान मिलिटेंट ग्रुप, जो कि या। हेडक्वार्टर हुआ अब्रॉड। ठीक है, चैट जीपीटी इज वेरी स्मार्ट, इसने बोला नहीं अब्रॉड कहाँ है, पर आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल नो। ऑफ नंबर कोर्स। टू जो है ऑर्गेनाइजेशन, वो है सिक्स फॉर जस्टिस, एस एफ जे। एस एसएफजी। एफ जे, एसएफजी। an overseas based organization advocating for Khalistan via referendums and legal activism. तो डिमांड्स जो इवॉल्व हो रही हैं वो हो रही हैं फॉर सीकिंग ग्रेटर ऑटोनॉमी अगेन, राइट, जैसे हमने पढ़ा, एंड टू आउटराइट सक्सेशन फॉर सम फैक्शंस। इसमें की इश्यूज हैं सिख आइडेंटिटी, राइट्स ओवर लैंड एंड वाटर, फियर ऑफ मार्जिनाइजेशन, और जो परसीव्ड फेलियर ऑफ इंडियन स्टेट है कि आप सिख इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है जी, ठीक है। इट इज़ प्रिटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी जो हम अभी अभी हम पढ़ रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट, इसके फेजेस और मेजर माइलस्टोन्स क्या हुए हैं। तो लेट ओके। सेवेंटीज़ और अर्ली एटीज़ में क्या हुआ, डिमांड ऑफ खालिस्तान बिगिंस टू गेन ट्रैक्शन अमंग द रेडिकल एलिमेंट्स। ठीक है, वायलेंट क्लैशेस शुरू हो जाते हैं, फॉर एग्जांपल सेक्टेरियन वायलेंस बिटवीन सिख एंड राइवल ग्रुप्स। राइवल क्यों लिखा है यहाँ, इंडियन या हिंदू ग्रुप्स क्यों नहीं लिखा है? एनीवेज, Oh. नेक्स्ट आता है See, they see 1984। that's why Skynet can go active anytime, you know. They just don't want to. पर चलो, Yeah, go चैट ahead. जीपीटी को भी अपनी जॉब बचानी है ना, Yeah, of course, सबको जॉब bro. भी बचानी है ब्रो। Yes, that just there could be नेक्स्ट, sanctions on ChatGPT, you know. You cannot use this in our country. Just ban this goddamn thing. रोबोट्स को भी बैन कर रहे हैं, Yeah. दैट्स ओके, दैट्स फनी। चलिए जी, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट वन ऑफ द की टर्निंग पॉइंट्स, जो कि अब वी आर स्टिल लर्निंग अबाउट द माइलस्टोन्स एंड फेजेस। Yes. ठीक है, तो ऑपरेशन ब्लू स्टार होता है जून 84 में। Yes. इंडियन आर्मी ऑपरेशन करती है टू फ्लश आउट द Yes. मिलिटेंट्स, Yes. इंक्लूडिंग जर्नैल सिंह भिंडरावाला, ठीक Hanji. है, फ्रॉम गोल्डन टेम्पल Yes. कॉम्प्लेक्स इन अमृतसर। ठीक है, Yes. असैसिनेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी होता है बाय हर सिख बॉडीगार्ड्स। ठीक Yes. है, जो कि शुरू करता है एंटी सिख That's राइट्स। yes. ठीक है, That's triggered. इंटेंसिव, और इसमें बहुत सारे सिख पॉपुलेशन को, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर Lynch. बिकॉज किसी को भी नहीं पता है Yes. एग्जैक्ट नंबर, No. एवरीबडी जस्ट स्पेकुलेट्स। सो Yes. लेट्स जस्ट से a lot of Sikh population was, honestly it was massacred, ठीक है, It was a massacre. in Yeah. in Yeah. front of cameras। 100%. Yes. मिड 80s और 90s में क्या होता है, पीक इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, न्यूमरस Yes. बॉम्बिंग्स होती हैं। ठीक है, असैसिनेशंस होते हैं, किडनैपिंग्स होती हैं। द बॉम्बिंग ऑफ एयर इंडिया फ्लाइट इन 1985, Yeah. 329 सिविलियंस जहां मारे गए, इट Uh, वाज थ्रू द सिख extremists abroad. I think it was going from Canada to India, if I'm not wrong. yeah. Could have been the other way around. Uh, फिर काउंटर इंसर्जेंसी शुरू हो जाती है, जब uh, जिसमें कि इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, पंजाब पुलिस, पैरामिलिट्री ऑपरेशंस,
शुरू Yes. होते हैं। एफर्ट्स लाइक ऑपरेशन ब्लैक थंडर 88 से 91 जो हुआ था, जिससे कि मिलिटेंट स्ट्रेंथ को कम किया जाता है, और Hmm. फिर ये जो डिक्लाइन पे आ जाती है मूवमेंट by the Yes. mid 1990s. Insurgency has largely been contained. Political accommodation, fatigue, loss of popular support, militant deaths, लोगों में थोड़ी अकल आने लग जाती है कि लड़े नहीं अरे और नहीं, because शांति this. से रहें और पहले Yeah. अपने गरीबी हटा लें। ठीक है। Yes. अच्छा, नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है कॉजेज एंड ड्राइवर्स ऑफ दिस Hmm. सेपरेटिस्ट मूवमेंट। ठीक है। Yes, that's क्या interesting. कॉज है, तो थोड़ा हम इसके रूह में अब जा रहे हैं। हाँ. आइडेंटिटी एंड रिलीजन, रिलीजियस डिस्टिंक्टिवनेस जो है, मेनी सिक्स फेल्ट कि उनकी आइडेंटिटी जो है वो एक अलग से बना दी गई है, हाँ. अलग से है, सॉरी, इन दे आर नॉट जस्ट अ सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म, राइट, विच इज टोटली कूल, यस। देर इज अ, दे दैट इज अ separate religion which is and it's not like, I don't think Hinduism is a religion first of all, but yes, Sikhism is a religion. uh, Yes. तो उनको लगता है वो आफ्टर 84 इट बिकेम अंडर थ्रेट। ठीक है, और इनको सिर्फ एक सेक्ट ऑफ हिंदुइज्म के हिसाब से देखा जा रहा है। ठीक है। ठीक है. इकोनॉमिक एंड रीजनल ग्रीवेंसेस चलती हैं, ऑल्दो पंजाब वाज रिलेटिवली प्रॉस्परस। ठीक है, थैंक्स टू ग्रीन रेवोल्यूशन और फार्मिंग, है ना। Yeah. देयर वर ग्रीवेंसेस अबाउट इंडस्ट्रियल ग्रोथ कि यहाँ एम्प्लॉयमेंट ना लाई जाए, रेवेन्यू को यूज़ कैसे करना है, रिवर वाटर शेयरिंग हमने नहीं करनी है, हाँ. according to the local populations. Not all, of course, but we're talking about the militants, right? ठीक है. Interestingly, movement in Punjab defies usual correlation between poverty. The movement in Punjab defies the usual Hmm. correlation between poverty and insurgency, क्योंकि जो पंजाबी अपनी जॉब में है या मिडिल क्लास बिजनेस में लगा हुआ है, दे डोंट हैव टाइम फॉर दिस फकरी। ठीक है ना। एज वी कैन सी दैट इन एनी केस वी हैव स्टडी टुडे। ठीक है Yes. ना। गरीब बंदों का बस आप माइंड वो कर रहे हैं, एंड या यू हैव न्यूज़ आर्टिकल्स गोइंग ऑन थ्रू दैट। एनीवेज, पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट होती है, सेंटर स्टेट के रिलेशंस हैं, सेंट्रलाइजेशन हाँ. और डिसरिगार्ड जो है पंजाब की डिमांड्स का, इन ये ऐसे परसीव किया जाता है कि हमसे चंडीगढ़ ले लिया गया, हमसे वाटर राइट्स ले गए। ठीक है, ये भी एक फैक्टर है। फिर एक्सटर्नल डायोस्पोरा सपोर्ट जो है वो बहुत ज़्यादा है। सिख डायोस्पोरा स्पेशली इन कनाडा, यूके एट्सेट्रा, एंड आई थिंक नाउ इन यूएसए एज वेल, Hmm. and alleged cross-border support from Pakistan's intelligence कंट्रीब्यूट करता है इस मूवमेंट को सस्टेन करने में। ठीक है, देयर Hmm. इज नो Denying जनरल it. नॉलेज हियर, नो, या इट इज प्रीटी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी Yeah, अगेन। just अच्छा, as the same case, Manipur में जो Myanmar is sharing the border with them. So that's हाँ, the closest guy you can get a help from. ये हमारा म्यांमार है, हाँ। Bas, that's it. It's just वो पाक putting लोगों things का into भी और perspective ना, खालिस because it's लोगों को सपोर्ट yeah, कर रहा है। because एक बहुत बड़ा बबल बना दिया गया है, like oh no, this is a huge issue, but media itself is being prejudiced about it, because अगर आप यही सेम एजेंडा वहां भी तो चल रहा है नॉर्थ ईस्ट में, why are you guys not talking about that? या You're just highlighting डेफिनेटली, this because fuels this fuels some sort of political gain in the end for somebody. एग्जैक्टली, That's pretty much एग्जैक्टली, it is, right? So ये have it doesn't work over there in northeast because the religion is different, right? यस। You cannot entirely say that they want this, all of this is because of that, because of just because of the religion. तो वहाँ पे हाँ, चीजें थोड़ी इसमें सी अच्छा, डिफिकल्ट हो जाती हैं. इसमें जो हमारे सामने ज़्यादा आता है वो आता है रिलीजन है, बट लाइक दिस सेड देयर इज ऑल्सो द फैक्ट ऑफ, अच्छा ये कहीं नहीं बोला गया है कि तुमने पंजाब भी तोड़ा। ठीक है ना, हाँ. पहले तो हिमाचल प्रदेश भी बना, उसके Exactly. बाद हरियाणा भी तोड़ा, राइट। Yes. Anyways, the हाँ. people who know about it, they know about it. We're just learning from our AI friends about this. ठीक है, so Yes. let's get back to this. ठीक है, आज का सर करंट स्टेटस क्या है इसका। Today ठीक है, 2025. हाँ, लार्ज स्केल मिलिटेंट इंसर्जेंसी इज ओवर इन पंजाब।
ठीक है, Yes. मोस्ट militant groups have been neutralized और they've gone dormant. However, रेजिडुअल सपोर्ट जो रह गई थोड़ी थोड़ी नीचे है ना, Mhm. छन्नी के ऊपर जो रह गई, और आइडियोलॉजिकल सिंपथीज जो है वो अभी भी एग्जिस्ट करती हैं, पर्टिकुलरली इन द फॉरेन डायस्पोरा। ओह, Hmm. हमें तो Are पता ही नहीं था। सम ऑर्गेनाइजेशंस, I'm sorry, like SFJ, still pushes references to Khalistan. They hold online referendums और ये प्रोपेगेंडा अभी भी जनरेट कर रहे हैं। Hmm. Exactly, exactly, exactly. लेकिन इसमें मेजोरिटी यही है कि in 2025, yes, as you said, most of the militant groups are silent or they have gone to peace, and the state is in state is in a peaceful. आई एम Uh, श्योर देर आर पॉकेट्स इन द स्टेट एज वेल yeah, yeah, of जहाँ course, पे वो लोग थोड़े एक्टिव होंगे, राइट, बट एज अ होल, यस, as a whole, yes, देर इज पीस, पीपल को exactly, एग्जिस्ट। जो लोगों को जो लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि सिख धर्म एक अलग धर्म है और हम हिंदुइज्म का पार्ट नहीं है, वो भी हाँ, हैं पंजाब में। ऐसे भी लोग exactly, हैं जो कहते हैं सिख धर्म हिंदुइज्म का ही पार्ट है और हम हाँ, दोनों आपस में भाई भाई टाइप हैं, वो भी ऐसे लोग हैं। हिंदूज भी दोनों टाइप के हैं, जो yes, कहते हैं कि ये हमारा पार्ट नहीं है, ये हमसे अलग है, और वो ये भी बोलते हैं कि भाई हम एक ही चीज़ है, राइट, इट्स द सेम बार्क ऑफ द ट्री और उसकी ब्रांचेस yes. हैं, राइट। But out of the two, I feel like it is a part of it. और इसमें factual evidence आपको देखने को मिल सकता है. We will do a different podcast on this and we can explore it a little. But even though मैं ये नहीं कहता हूँ कि that makes Hinduism superior to them. No, नो, that's not the हिंदुइज्म point, इज नॉट अ right? रिलीजन बाय द वे, राइट। Exactly. अगर हाँ. अब हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन्स की, राइट, Yes, लाइक exactly. organized religion, yes, Sikhism is an organized religion, it also Yes. has a spiritual side to it, जहाँ Yes. organized नहीं है कुछ भी, ठीक है हाँ. ना, जहाँ आप एक स्पिरिचुअल वे में सिक्खी को समझते हैं, हाँ. चाहे वो बाबा नानक है उनके हाँ. टाइम से लेकर, हाँ. चाहे वो आजकल के भी जो अपकमिंग सिख गुरुज हैं हाँ. उनकी भी अगर आप बातें सुनेंगे, बट एट द सेम टाइम लाइक आई सेड, there are all kinds of people, right, they have their freedom to think the way they want to think We and think live the yes. way they want to live, Absolutely. right. We are not here Yeah. to preach, हम कोई Yes. गुरु बाबे नहीं है किसी के, ठीक है हाँ. ना। हमें बस ये पता है अपना पहले सही करो फिर दुनिया को ठीक करने चलो, ठीक है ना। फिक्स योर ओन हाउस फर्स्ट, Yes. एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग बाय लर्निंग दिस फर्स्ट, ठीक है। तो Exactly. नेक्स्ट अपने पॉइंट पे चलें सर। Yes. Let's go down to Tamil Nadu, sir. Tamil नहीं नहीं Nadu. नहीं, हम्म. एक तो रह गया इसका, इसका कौन सा? तुम्हारा अच्छा, हाँ, गो ahead. एक मूवमेंट डिक्लाइंड जो है हाँ. और जो टेक अवेज हैं, ठीक है, वो रह अच्छा, गया टेक अवेज ठीक खालिस्तान है. का। हाँ. हाँ, मूवमेंट डिक्लाइन क्यों हुआ? द मूवमेंट नेवर सिक्योर्ड mass popular support across the Sikh community and Punjab, especially for full succession. क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा, सम एनालिस्ट आर्ग्यू कि ऑल्दो देयर वाज सपोर्ट, पर फुल ब्लोन सेपरेटिज्म नहीं है सिख कम्युनिटी में, और फिर हाँ. इफेक्टिव सिक्योरिटी ऑपरेशंस और इन्फिल्ट्रेशन ऑफ मिलिटेंट नेटवर्क्स बाय इंडियन स्टेट फोर्सेस, Yeah. ठीक है। एंड जब हम खालिस्तान का पूरा एपिसोड करेंगे, वी विल टॉक अबाउट कि जो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं कि पिंडरावाला जो है इसको इंडियन स्टेट ने खड़ा करा, इसको राइज करना की जो वो कंस्पिरेसी थ्योरीज हैं, वी विल गो डीप इनटू दोस, Yeah. ठीक है। और कैसे उसने सिख पॉपुलेशन का ब्रेन वॉश करने की कोशिश की, ठीक है। नेक्स्ट इज इंटरनल फ्रैगमेंटेशन और लॉस ऑफ लीडरशिप विद इन मिलिटेंट, ये तो हम आज भी देख रहे हैं, डिफरेंट हाँ. डिफरेंट गुरुद्वारों में भी ये चीज़ें हो रही हैं अनफॉर्चुनेटली। Yes. Yes, हो रही है. जितने जत्थेदार हैं एक दूसरे के हाँ. साथ वो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, मनी के Yes. लिए, पावर के Yes. लिए, nobody gives a fuck about religion और Yeah, spirituality, true, true. सबको वही है, अपना वो भरना है और वो भर रहे हैं, और लोग उनको जय 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 कर रहे हैं, ठीक हाँ. है। लास्टली अब हम आ जाते हैं की टेकअवेज एंड सिग्निफिकेंस पे, ऑलराइट।
Khalistan movement is one of the India's major post-independence insurgencies, जो कि illustrate करती है challenges of religious identity, हम्म, federalism, हम्म, state-center relations, और हम्म, security. It also shows that prosperity alone does not immunize a region against separatism. Ooh, that is a very good point. कि अगर हम्म, आपके पास पैसा आ गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो आपका रीजन है वो सेपरेटिज्म की तरफ नहीं जाएगा. पंजाब was very affluent yet yes, saw इंसर्जेंसी विच इज़ इट इज़ अ वेरी जो ऐसे हम बात कर रहे थे ना हाँ हाँ मणिपुर और नागालैंड में कि यार अगर वहाँ डेवलपमेंट हो जाएगी लोगों के पास टाइम ही एग्जैक्टली नहीं तो होगा. हाँ हाँ ये वो मैं हमारे पॉइंट को काउंटर कर दिया चैट यस जीपीटी ने कि भाई यस यहाँ तो पैसा आया और फिर भी लोग ऐसे हैं यस और फिर भी यस ये मूवमेंट चली है. ठीक है ना, विच इज़ आई हाँ थिंक इट्स चलिए इंटरेस्टिंग. इट हाईलाइट्स द रोल ऑफ एक्सटर्नल एक्टर्स, जैसे कि डायस्पोरा जो है क्रॉस बॉर्डर या फिर अब्रॉड में कनाडा यूएस यूके में, और कैसे इनका रोल जो है डोमेस्टिक सेपरेटिस्ट मूवमेंट को हाईलाइट करता है और उसको एड करता है. ठीक है ना. Reconciliation of governance challenges remain even though large scale violence बंद कर दी गई है. Many of the pre-insurgency grievances आज भी persist कर रही हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर डिस्ट्रेस है, ड्रग प्रॉब्लम है, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स है. और ये भी शो करता है कि separatist movement can become less about full succession over time and more about local autonomy, about their rights and their identity. हाँ वही वही Okay. वही क्योंकि जैसे वो वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में बात कर रहे थे ना कि जैसे जो नागाज हैं उनकी जो आइडेंटिटी है उसको प्रिजर्व करना उस पर फोकस डालना एंड जी. rather than a succession let's put them to governing the state. Yeah. Their Exactly. focus was अच्छा, shifting. इसमें आई डू वांट टू से वन थिंग. ठीक है, हम्म, एंड आई वांट टू वेरी केयरफुली से दिस. राइट, आई बीइंग फ्रॉम पंजाब है ना. वहाँ का मेरा रहे हैं सारी ज़िंदगी वहीं रहे हैं until we came here. It is my state, right? I love the state and I would never want to see this kind of bullshit in my birthplace in my motherland. ठीक है. एंड इसके लिए आई डू वांट टू say on the air to a lot of people from Haryana especially. ठीक है, even Delhi and Himachal, but mostly Haryana, कि like kudos to you guys for actually standing up. ठीक है, you have actually shown कि okay you this whole region till Delhi was Punjab. और अगर थोड़ा सा छोटा सा जो पंजाब रह गया है अगर उसका दिमाग खराब हो रहा है ना, तो और भी लोग हैं जो उसका दिमाग ठीक करने में आज भी खड़े हैं और दे आर संक्षेप हैं वो आज भी है ना, उसको ठीक करने में. हाउएवर आई आई ऑल्सो वांट कि जैसे पंजाब में वो बार्किंग बिकेम बिगर देन फाइटिंग, ऐसे ना हो जाए हरियाणा के लोग. आई आई रियली प्रे एंड आई विश एंड आई हैव दिस मैसेज. आई होप कि डोंट डोंट बिकम द थिंग यू आर ट्राइंग टू फाइट और यू आर ट्राइंग टू स्टैंड अगेंस्ट. ठीक है ना. yeah, yeah, कीप योर सेल्फ ग्राउंडेड. हाँ ठीक है, ये इधर की जो हैं ये लोग दे आर वेरी लाउड एंड दे लव प्रोटेस्ट करना हर जगह 2 मिनट में. दे गेट बोनर्स फ्रॉम डूइंग प्रोटेस्ट. सो ठीक है, आप उनके अगेंस्ट खड़े हो रहे हैं बट प्लीज डोंट बिकम द पीपल यू आर ट्राइंग टू फाइट. दैट इज ऑल आई हैड टू से अबाउट दिस. ठीक है, अगेन it is my birthplace. It is every right of every Indian to say this, right? We should live in a cool country which is strong, not something which is fighting with itself, right? yeah, fighting So that within was itself, our yes. thing. हाँ, तुम इसी में बिजी हो यार. दुनिया कहाँ क्या 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 करने आ गई है. तो तुम एआई पे आ गए हैं लोग एंड यू आर जस्ट ये मेरा लैंड है, ये मेरा भगवान है.
right? It is pretty Yeah, much the can't just same thing. get over it My from God past has a 100 bigger years. dick than your Yeah. God, and that is why you are stupid, right? This is same bullshit we are doing since 5000 years. तो मैं ना वो वाले tangent पे जाना नहीं चाहता होता. I want to Just go stay there calm, cool. It because is an education वाला podcast है, yes, so we don't want to but go वो there. हो We will जाता है. we will we will definitely will have a podcast for that. That और is सच something. ये है कि दोनों ने भगवान ही देखा है. No, no, दोनों nobody साइड ने. actually saw it. They're Uh, just claiming the thing that they have not seen, and then it's like uh, chasing a goddamn wild goose in the dark. You have सो no idea आफ्टर अ क्या है पॉइंट क्या यू नहीं. कैन नॉट डिस्टिंग्विश कि ये रिलीजन है या मेंटल इलनेस आ जाती है, राइट? देयर Exactly. इज अ वेरी थिन लाइन इन बिटवीन, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ब्रो आई एम फाइटिंग विद यू ओवर माय इनविजिबल फ्रेंड Yeah. एंड योर इनविजिबल फ्रेंड, ठीक है? Yes. जो दोनों का फ्रेंड वो दिखता नहीं है. सो एनीवेज, Yes. It लेट्स is. नॉट लेट्स नॉट गो देयर. Yes. आज थोड़े हम गुड बॉयज की तरह बिहेव करेंगे, एंड वी जस्ट लर्न अबाउट द पंजाब सेपरेटिस्ट मूवमेंट, Yes. एंड वी आर गोइंग टू गो टू तमिलनाडु, Yes. Let's जो go कि to Tamil Nadu. हिंदू हिंदू महासागर के द्वीप पे जाकर, जहाँ ये लैंड है, लैंड Yes. ऑफ द तमिल पीपल, एंड वी विल लर्न द सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑफ तमिलनाडु. तो पूछते हैं हमारे फ्रेंड एआई से फिर से कि हमें Okay. डिटेल में समझाइए अबाउट द सेपरेटिस्ट मूवमेंट ऑफ तमिलनाडु. Tamil Nadu. आई हैव आई एम प्रीटी श्योर इसके अंदर वी नो Uh, अबाउट द असैसिनेशन ऑफ राजीव गांधी. yes. We know about the role of some of the groups from Sri Lanka Yes. and some of the groups in Tamil Nadu. But I think Mhm. I'm getting a technical glitch. So, Mr. Hira, आप जरा I अपने got AI you. फ्रेंड को बोलें कि Yes. tell us in detail about the Yes. separatist movement in Tamil Nadu. Yes. और It's उतनी coming up. देर I It's will go coming up. to the map Yes. and I'll go zoom in on Tamil Nadu, जहाँ पे ये Uh, रामेश्वरम और there it ये is. सब There it is. इकट्ठे हो रहे हैं. Yes. Take a look over there. So, Okay, perfect. oh, Here it there you is. go. Oh सो yes. सेपरेटिस्ट मूवमेंट इन तमिलनाडु की जो बैकग्राउंड है, थोड़ा हम वो हाँ, पढ़ते हैं पहले. समझते हैं पहले सो कि है क्या. इसमें हो क्या रहा है, ठीक है? फर्स्ट थिंग इज बैकग्राउंड. द रूट्स ऑफ तमिल सेपरेटिज्म लाइज इन लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल प्राइड एंड नॉट रिलीजन, ठीक है? ये भाषाई वर्ग का लड़ाई है, ये रिलीजन की लड़ाई नहीं है, ठीक है? ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, मद्रास प्रेसिडेंसी वॉज मल्टीलिंगुअल रीजन, ठीक है. and Tamil speakers feared domination by northern, especially Hindi speaking Indians after independence. Independence. Okay. तो जो इम्पोजिशन हुआ हिंदी का एज द नेशनल लैंग्वेज इन 50s एंड 60s, ये Yeah. था एक बहुत बड़ा ट्रिगर, ठीक है? Okay. विच इज़ राइटली सो, ठीक है, Yeah. It ऑन is द so. तमिलियन पीपल. फिर आती है द्रविडियन मूवमेंट इन अर्ली 20th सेंचुरी, जिसके फाउंडर थे ईवी रामासामी पेरियर, जस्टिस पार्टी, और लेटर द्राविदार खाजा खाजगाम, That's a डी good. के फॉर शॉर्ट फॉर्म, लॉन्च द द्रविडियन मूवमेंट. Mm. और क्या एडवोकेट किया इन्होंने? राइट्स ऑफ नॉन ब्राह्मण तमिल्स, ठीक है, सोशल जस्टिस, और opposition to Hindi and North Indian domination. Periyar even proposed a separate country called Dravida Nadu for all South Indian states. Mhm. For all South Indian states. That is cool, interesting. Let's see what Kerala or Karnataka has to say about it. But anyways, post independence separatism जो है 40s और 60s में जो चल रहा है, उसमें क्या हुआ? आफ्टर 47, पेरियार और उनके फॉलोअर्स कंटिन्यू टू डिमांड द्रविड़ नाडु, a sovereign South Indian nation. The idea gained momentum during anti-Hindi agitations of 1965, ठीक है, जब तमिल स्टूडेंट्स और एक्टिविस्ट प्रोटेस्ट करा इन्होंने वायलेंटली अगेंस्ट कंपल्सरी हिंदी एजुकेशन. हाउएवर, इंडिया का जो 16th
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ, इसने बनाया सक्सेशन को इलीगल, फोर्सिंग द्रविडियन लीडर्स टू अबैंडन द कॉल फॉर इंडिपेंडेंस। ओके। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं नीचे, शिफ्ट टू रीजनल ऑटोनॉमी। 1967 जो है, डीएमके, द्राविडा मुनेत्रा काजगम, अंडर सीएन अन्नादुराई won the Tamil Nadu elections। ठीक है। जो डीएमके था, डीएमके dropped the separatist demand, जो पार्टी है, and they worked within the federal framework seeking greater autonomy, not succession। Okay। तो अन्ना दुराई famously said, we want autonomy for Tamil Nadu, not separation from India। Okay, I can see that, you want to make your state bigger and stronger, which is cool। Anyways, next point आता है तमिल ईलम कनेक्शन ऑफ 1980s एंड 90s। श्रीलंकन सिविल वॉर जो हुई, उसने रिवाइव कर दिया तमिल नेशनलिज्म को, क्योंकि जो तमिल्स थे तमिलनाडु में, दे सपोर्टेड देयर एथनिक किन, जो कि हैं श्रीलंकन तमिल्स। तो मतलब कि इंडियन पंजाब के लोगों ने पाकिस्तानी पंजाबियों को, अगर हम आसानी में समझाएं, उनको सपोर्ट किया। ठीक है। और फिर आती है एल टी टी ई, ओह आई हैव हर्ड दिस, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम, which fought for a separate Tamil state in Sri Lanka, received sympathy and limited support from sections of Tamil Nadu। ठीक है। However, after the assassination of Rajiv Gandhi in 1991 by LTTE operatives, India banned LTTE and tightened its stance against any separatist activity। क्योंकि भाई अगर इंडिया पाकिस्तान वाली हरकतें तो कर नहीं सकता ना, कि आप यहाँ पे बैठे एलटीटी के लोगों को जो श्रीलंका के अंदर हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और फिर उसने आपका इंडिया का ही प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर मार दिया, राइट। एनीवेज, आज की सिचुएशन पे आते हैं। टुडे तमिलनाडु इज स्ट्रांगली इंटेग्रेटेड within India, right? We know that the Dravidian parties, which are DMK, yeah, AIADMK, focus on state rights, language protection, ठीक है, federalism, and not independence। Tamil pride continues culturally, but political separatism has disappeared। तो ओके। इसका जो समरी है वो यही कह रही है हम्म। कि जो इसके हमने की लीडर्स के बारे में अभी समझा, ठीक है, ये एक लिंग्विस्टिक फाइट थी, इट इज़ नॉट ऑन रिलीजन। आइडियोलॉजी इसमें जो थी वो द्रविडियन आइडेंटिटी के ऊपर थी, कि हम अपनी द्रविडियन आइडेंटिटी को सॉलिड रखना चाहते हैं, हम एंटी हिंदी हैं, हम हिंदी लोग नहीं बनना चाहते, विच इज़ देयर चॉइस, राइट। रीजनल ऑटोनॉमी हम चाहते हैं, और हम इसके जो की लीडर्स हैं, जो कि मिस्टर पेरियर, ईवी रामसे और सीएन अन्नादुराई हैं, इनके अंडर ये चीज़ें जिन्होंने फ्यूल करे। ठीक है। इसका पीक पीरियड था 40 से 60s का। ठीक है। मेन डिमांड द्रविड़ नाडु की थी, इंडिपेंडेंस साउथ इंडिया का। गवर्नमेंट का रिस्पांस हुआ, 16th अमेंडमेंट, बैंड सक्सेशन कर दिया उन्होंने। ठीक है। और उसके बाद वो जो आउटकम हुआ, वो मूवमेंट शिफ्ट हो गई सक्सेशन से ऑटोनॉमी की तरफ। और करंट स्टेटस आजकल पीसफुल है, फोकस ऑन कल्चरल प्राइड है, फेडरल राइट्स है, अपनी स्टेट को स्ट्रॉन्ग बनाने का इनका जो विजन है, रादर देन कि इसको अलग स्टेट बनाने का है, राइट। So, in short, that is all we learned about Tamil Nadu, which is, I feel like, again, it is very small, brief summary we have learned. इसमें तो हमें 5-10 मिनट भी नहीं लगे होंगे। And again, we do realize, guys, कि ये सिर्फ और सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग को हम स्क्रैच कर रहे हैं। हम इसमें अभी डीप में नहीं गए हैं किसी भी सेपरेटिस्ट मूवमेंट में। ठीक है। But we definitely will in our upcoming podcast. We do want to understand, learn about the powers which are trying to break India, which are trying to break Bharat, and the way they have been successful or they have been put down. ठीक है ना, we do want to learn those, we these are very interesting topics। um,
लास्ट में एक मैं कंक्लूजन जो है तमिलनाडु का, उसका मैं ये बोलूँगा कि the Tamil separatist movement evolved from a quest for Dravidian independence into a powerful regionalist and social reform movement. आज तक इसका लास्टिंग जो इम्पैक्ट है वो नहीं देखा गया, बट इन स्ट्रॉन्ग फेडरल कैरेक्टर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, सोशल जस्टिस पॉलिसीज या प्रोटेक्शन ऑफ लिंग्विस्टिक कल्चरल राइट्स, ये एक स्ट्रॉन्ग फेडरल कैरेक्टर रहा है, विच इट इज अंडरस्टैंडेबल। लाइक व्हाई डू यू वांट टू, लाइक ये क्या आपको मजा आता है कि ये तुम भी हिंदी सीखोगे और तुम भी हिंदी, भाई जिसको हिंदी बोलनी है वो हिंदी बोल रहे हैं, वो वाला लैंग, जिसको जिनकी जो लैंग्वेज है, जिनको पंजाबी बोलनी है वो पंजाबी बोलेंगे, ठीक है ना। जो लोग द्रविडियन लैंग्वेजेस बोल रहे हैं, लेट देम डू देयर थिंग, राइट, एंड hopefully try to be strong as one big subcontinent and not this ये कि यहाँ छोटी छोटी वहाँ चल रही हैं लड़ाइयाँ, इधर चल रही हैं, साउथ में यहाँ है, नॉर्थ ईस्ट में यहाँ है, नॉर्थ में ये है। सो anyways, those multiple opinions of ours, will keep those in. आज का podcast was very very informative. I thank you all for staying with us, learning the separatist movements of India, and please continue to support us throughout all our platforms, and बने रहिए हमारे साथ at the Whiskey Mile.